Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's solve some more questions from lines and angles and understand some more concepts which are very important from grade 9 perspective. So if you want to watch all those videos that I am putting on lines and angles and further videos on different other topics, then please do like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. So let's start with whatever we are going to learn. Attention here, if we get our base correct here, we will be going forward in grade 9, we won't have any difficulty. So what is a transversal? Any line which intersects a system of lines is called as transversal. You will get this definition in anywhere you're going to search. But uska matlab kya hai? Now look at these two lines here, L and M. Now if you try to extend them, they will go forward and meet somewhere on the far right? But that is a different intersecting point. Look at this line here. This line is intersecting these pair of lines at point A and point B. Now this line is called as transversal, which is why I have given it the name T. This is the line which is intersecting the system of lines NLM at 2 points A and B. So this is the transversal. Not necessarily a pair of lines will be there. There could be many lines like this, okay? And there will be one transversal cutting across. Not necessary the lines would be going for not parallel. They could be parallel also. There could be a pair of parallel lines or more number of parallel lines which are being cut across by transversal. Okay, so the situation could be any. That's why it is written system of lines. System of lines means it could be two or more than that. Okay, that line which cuts across two or more than two lines, system of lines is called as a transversal. And the angles formed by this transversal with this lines, they are very important to be named and remembered. तो वो हम सीखेंगे. उसके लिए पहले ट्रांसवर्सल जरूरी है. ये नहीं कि जो लाइंस पैरेलल है उन्हें ही कट करे. ट्रांसवर्सल कुड कट एनी सिस्टम ऑफ लाइंस. ये इंपॉर्टेंट है पहले समझने के लिए. Now let's have a look at these two lines L1 and L2. They are being cut at 2 points by this transversal L. Okay, now let's remember all the angles. They have got specific names. बड़े important है. इस सिस्टम ऑफ लाइन्स आएंगे, कुछ एंगल्स दिए गए होंगे, कुछ एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंगल्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. Now if you see 1, 2, 7, 8, they are lying outside, right? 1, 2, 7, 8, ये जो पेयर ऑफ लाइंस के अंदर नहीं बाहर हैं. दे आर लाइक द गेट कीपर्स. जैसे गेट कीपर्स गेट के बाहर खड़े होते हैं, अंदर नहीं. उसी तरह से एंगल 1, 2, एंगल 7 and 8 आर आउटसाइड. That is why they are called as exterior angles. See here the word exterior. क्यों exterior? Because they are not lying within the folds of L1 and L2. They are lying outside. So angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are called exterior angles. Now what are interior angles? Interior angles are angle 3, 4, 5 and 6. Interior angles का मतलब क्या है? They are not lying within. जैसे घर में, घर के अंदर हम क्या कहते हैं? We are getting our interiors done. So ये L1 and L2 के अंदर है. So that is why these angles are called interior angles. अब आता है पॉइंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स का. ओके, सो यहाँ पे देखो एंगल 2 और एंगल 6 सेम कलर के हैं. एंगल 2 एंड एंगल 6 दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये है ट्रांसवर्सल L. ट्रांसवर्सल L के और ये जो लाइन L1 एंड L2 के दोनों ही जो हैं करेस्पॉन्ड कर रहे हैं एंगल 2 और एंगल 6. ये वाला जो है इस वाले पोर्शन को ले रखा है एंगल C ने, इस वाले पोर्शन को एंगल 2 ने ले रखा है. तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड corresponding angle. Similarly, I'll erase this. Angle 1 and angle 5 also lie on the same side of the transversal and ऊपर की तरफ L1 के ऊपर और L2 के ऊपर एंगल 5 है. तो these are also called corresponding angles, right? सिमिलरली और दो पेयर से नीचे की तरफ अगर देखें, लाइन L1 के लेफ्ट हैंड साइड पे और लाइन L2 के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्सल L, we have angle 4 and angle 8.
राइट? तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग है, ये उल्टे राइट हैंड साइड पे है, नीचे की तरफ एंगल 3 एंड 7. So these there are four pair of corresponding angles, okay, formed by a transversal when it intersects two lines. उसी तरह से देखते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल हम समझ गए 3, 4, 5, 6. अब अल्टरनेट क्या होता है? ओके तो उसको हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, पर फिर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ऐसे दो एंगल्स, दो लाइंस अगर हैं और एक ट्रांसवर्सल है, you have to try to find out a Z formed like this. अगर ऐसा एक Z फॉर्म हो रहा होगा तो ये साइड एंगल और ये साइड एंगल को हम नेम करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सिमिलरली ये जो एंगल, अब इस फिगर में तो ड्रॉ करना मुश्किल है. लेट मी ड्रॉ अनदर वन. उल्टा Z अब करें, आड़ा टेढ़ा जैसे भी Z करना है कर पा रहे हो, सीधा खड़ा हुआ Z जैसे भी बन जाए, Z बनाने से हमें समझ में आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ पर है. अब ये वाले एंगल्स देखो, ये और ये, दीज आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पर वैसे कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? एंगल 3 और एंगल 5 को देखो, राइट. दे आर इंटीरियर और ऑल्टरनेट है, मतलब एक तो राइट हैंड साइड पे लैग कर रहा है ट्रांसवर्सल के, एंगल 3, और एंगल 5 टू द लेफ्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्सल line L. So angle 3 and angle 5 form one pair of alternate interior angles. Similarly, angle 4 and angle 6, they are lying on the, opposite side, and they are also forming a pair of alternate interior angles. उसी तरह से alternate exterior angles के भी बनते हैं. अब exterior angles कौन से हैं वो तो हमने देख लिए थे, 1, 2, 7 and 8. 1 और 7 वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. अब हम उसको धीरे धीरे देखेंगे, मैं इसके और भी डिटेल में करूंगी, पर यहाँ पर एक ब्रीफ में समझा रही हूँ. एंगल 2 और एंगल 8 वो भी एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं. ठीक है. अब को इंटीरियर एंगल्स देखो. को इंटीरियर एंगल्स क्या है? अ पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई on the same side of the transversal, ये transversal and in between lines and L1 and L2, not outside of L1 and L2, inside L1 and L2. जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ पर, वो कहते हैं को इंटीरियर एंगल. सेम साइड पे है, राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल L है, सो ये है को इंटीरियर एंगल. सिमिलरली एंगल 4, एंगल 5, दे आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल L and in between the lines L1 and L2. So angle 4 and angle 5 also form a pair of co-interior angles. ये हम और डिटेल में समझते हैं. While solving questions also you will understand. Look at these lines, system of lines being cut by this transversal. Let this transversal be T and these two lines be L and M. Now corresponding angles कैसे निकालेंगे? Now look here, look for an F. Always try to look for an F when you are trying to identify corresponding angles. अच्छा, ये नीचे देखो, ये ट्रांसवर्सल, ये तो ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल L और M के नीचे वाले ये एंगल्स देखो, ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, इनको 1 और 2 दे देती हूँ, ये करस्पॉन्डिंग है. मान लो ये एंगल L एंड M, लाइन L एंड M पैरेलल है, L is parallel to M, then ये जो corresponding angles तब जाके angle 1 and angle 2 will be not only corresponding, they will also be equal to each other. That's why I wrote equal, because since line L is parallel to line M, तब angle 1 and angle 2 equal हो जाएंगे. बड़े important point है, please remember this. And one more thing, अब इस साइड पे देखो, ये ऊपर वाले साइड पे देखो, यही ट्रांसवर्सल है, ये F के ऊपर ये जो बन रहे हैं ना दो एंगल्स, तो ये वाले भी जो हैं 3 और 4 में नेम कर देती हूँ, ये वाले भी करस्पॉन्डिंग होते हैं. और अगर पैरेलल लाइंस, ऐसे सिस्टम ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल. वरना तो जैसे पहले वाले केस में दिया था, लेट मी गो टू द प्रीवियस फिगर, या तो फिर प्रीवियस फिगर हियर, यहाँ पर अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग F निकालू तो F तो बनेगा, ये वाला F तो बनेगा,
यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी निकलेंगे, मतलब ये नीचे वाले एंगल्स जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होंगे 1 and 2, बट दे हियर एंगल 1 and एंगल 2 आर नॉट इक्वल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स डेफिनेटली। वैसे ही ऊपर ये एंगल 3 और एंगल 4 ये वाले भी कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, पर दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज एंगल एल एंड एंगल एम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेलल लाइंस आर अ गेम चेंजर विद अ ट्रांसवर्सल, दे मेक इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली यहाँ इस साइड पे आप जिस तरह से आड़े टेढ़े जैसे हो जाए वैसे आप कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी एफ बनाइए, एफ वाला लेटर बनाइए, कैपिटल एफ। तो ये वाला एक एफ बनता है। अगर यहाँ पर ऐसे एफ बनेगा तो ये नीचे वाले एंगल्स जो हैं दे ऑल्सो विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग। सो इफ अगर इसको मैं नाम रखूं 5 और 6, तो ये नीचे वाले जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और नीचे आते हैं टू द लाइन एल एंड एम, तो वो वाले इक्वल हो गए और कॉरेस्पॉन्डिंग तो है ही। और सिमिलरली ये ऊपर वाले भी बन जाएंगे equal, angle 7 and angle 8. These are also a pair of corresponding angles and they are also equal. वैसे ही ये वाले मैंने थोड़े वर्टिकल पेयर ऑफ लाइंस लिए थे सो दैट आप यहाँ पे भी बिना कंफ्यूज हुए एफ निकाल सकते हो। ये वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे आप उल्टा एफ भी ले सकते हो ऐसे, तो ये वाला एंगल हियर एंड ये वाला एंगल हियर विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और वो पेयर अगर ये पेयर और ये पेयर अगर पैरेलल है लाइंस के, तो दे विल आल्सो लाइक प्रीवियस केसेस वो भी क्या फॉर्म करेंगे, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल वो फॉर्म करेंगे। ओके ये थोड़ा हेजी हो गया तो मैं दिखाने की कोशिश करूं। एफ तो यहाँ भी इस तरह से बनता है एंड इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे भी निकाल सकते हो, राइट। एफ यहाँ पे भी इस तरह से बनता है, ये एक दूसरा एफ बन गया। वैसे ही इस साइड पे भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हो। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। बस ये पॉइंट याद रखना, पैरेलल है सिस्टम ऑफ लाइंस तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं इक्वल होंगे। अब आते हैं लर्न करते हैं दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। जैसे हमने सीखा एफ से करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हैं, उसी तरह से लुक फॉर जेड, जेड लाइक दिस टू फाइंड आउट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर है मतलब हमें बाहर की तरफ देखने नहीं, ये अंदर एंगल्स देखते हैं। ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है और ये वाला भी देखना है। बाहर के एंगल्स में हमें कुछ नहीं लेना देना, तो इसी में ऑल्टरनेट होगा। तो ये z के इस तरफ और इस तरफ, ओके ये जो दो एंगल्स हैं ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर l और m पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो फिर ये जो एंगल 1 और एंगल 2 दे नॉट ओनली देयर विल बी अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पर वो इक्वल भी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइंस पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल। जैसे दूसरा z भी जिस तरह से भी z बन जाए बना लो, रिवर्स एक इस तरह से z बनेगा, तो भी यहाँ पर जो ये एंगल्स बनेंगे लेट देम बी 3 and 4, वो भी इक्वल होंगे और वो भी कहलाएंगे अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ये वाले मैंने वर्टिकल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लिया है, मान लो ये पैरेलल ही है, देन ये जो z बनेगा यहाँ पर, वहां पे भी हमें एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेंगे और वो भी सेम होंगे इन मेजर। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कुछ बहुत डिफरेंट है और कुछ बहुत सेम भी है। सेम कैसे हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं दे विल बी सेम इन मेजर। और डिफरेंट कैसे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम एफ दे ढूंढ रहे थे, यहाँ पर हम ढूंढेंगे एक जेड, राइट। इस तरह से एक जेड ढूंढेंगे, z मिल जाए तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके इस तरफ उस तरफ मिल जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो एक्सटीरियर भी होते हैं, पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा जो है दो जो सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लाइन है उनके अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि इंटीरियर है ऑब्वियसली, वो दे विल नॉट बी एक्सटीरियर।
पर एफ जो बनता है उसके बाहर के साइड भी जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटर एंगल्स डिफरेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप एफ ढूंढिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आप जेड ढूंढिए, और इस तरह से आप को मिल जाएंगे टू पेयर्स ऑफ alternate interior angles and they will be same in length if the lines are parallel to each other. So ये हो गया alternate interior angles। इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ये और भी ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। Now let's see alternate interior angles we have learned. Let's see for what happens when the lines are parallel to each other and we get a pair of alternate exterior angles. Just like corresponding angles and alternate interior angles, exterior angles will also be, alternate exterior angles will also become equal. The pair of alternate exterior angles will also be equal in measure if the two lines here are parallel to each other. सो हियर वी हैव स्पोकन, पहले भी बात की थी कि जो एक्सटीरियर है उन्हीं एंगल्स में हमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देखना पड़ेगा। तो ये एक है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड होगा, राइट। ट्रांसवर्सल के इस तरफ उस तरफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। जैसे कि इंटर एंगल्स ट्रांसवर्सल के दोनों ऑपोजिट तरफ ही बनते हैं पर इंटीरियर होते हैं, वैसे ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑपोजिट तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के बट एक्सटीरियर रहते हैं। सो वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक पेयर ऑफ जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनाता है, बट ओनली थिंग इज दैट हियर इन सिंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये सिस्टम ऑफ लाइन पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 और विल बी इक्वल। यहाँ पर भी वही केस होगा क्योंकि पैरेलल है लाइन, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे जो कि इक्वल होंगे ईच अदर से। तो ये पॉइंट याद रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म pairs in which angles are of equal length if the lines, the system of lines that are cut by the transversal are parallel to each other. Very important. नहीं तो they will form these angles but they will not equal। अगर lines, वो system of lines parallel नहीं है तो angles तो वही बनेंगे but they will not be equal in measure। ये बड़ा ही important point है। अब आते हैं next angle पे। Now let's check a pair of co-interior angles when the pair of lines are parallel। तो क्या co-interior angles equal हैंगे? तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं co-interior angles हैं कौन से। यहाँ पर ये वाला एंगल इंटीरियर है, ये वाला एंगल भी इंटीरियर है, ये एंगल भी और ये एंगल भी इंटीरियर एंगल्स हैं। पर क्या को-इंटीरियर कौन है? दोज विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, बट क्या ये इक्वल होंगे? ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे, पर क्या होंगे? कुछ तो रिलेशनशिप बनेगा बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ट्रांसवर्सल ये रहा, सेम साइड पे एंगल 1 और एंगल 2 रहे, ये दोनों एंगल्स होंगे सप्लीमेंटरी, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 इफ यू एड देम अप दे विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 दूसरे साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, इनके बीच भी कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, वो बनेगा ही। यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं दे विल बी सप्लीमेंटरी, दे विल फॉर्म 180 डिग्री व्हेन यू ऐड द वैल्यूज। तो ये है पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। ये सेम नहीं होंगे बट दे बिकम सप्लीमेंटरी एंगल्स इफ द लाइन्स विच आर कट बाय द ट्रांसवर्सल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब हम प्रॉब्लम्स करते करते और ज़्यादा ये सब समझने लगे।